Today I'm going to teach you something which kids also can learn. It's very good to hear those words again and again. It is very important when we ask God to to help us to understand the deeper meaning of what he is saying in his word. God's the way God function is very simple. What God has spoken to us in the word of God is very simple and clear. Yes, it's not very difficult. And that's why people who are translating Bible, they're translating Bible in every language. You can find Bible in Bengali, right? And you have Bible in Udiya, you have Bible in Tamil, you have Bible in Malayalam, you have Bible in Hindi. What does it mean? The message is simple. Message is in your language, then you read and understand it. There is no science needed to understand what God wants from you. There's no, there is nothing which we can't understand. The only thing we need is heart. When you want to make friends with other, do you see external things? If you are seeing external things, you are not seeing friend. Then you are selfish. But if you are seeing friend, what will you see first? You'll see heart. You'll see heart. So when we want to make friends, we want to say, let's have heart to heart connection. Hallelujah. Let's have heart to heart connection. Isn't it good that God made him his friend to us? Isn't it beautiful that he calls us his friend? God Almighty chose to call himself my friend. And you know what this friend says to you and me? Fear not, for I am with you. Hallelujah. What does he say? Fear not, for he is with you. Are you with me? If you will hear carefully what God is saying, you will see that, oh, I know this word. I know God's told me, fear not. Since I believed in God, I know God has told us, fear not. But still, again, I'm hearing the same message. What does it mean? It means God wants you to live a life of courage. The friend which you are searching here and there, you have found in Jesus. Can I give you one suggestion? Don't find spirituality in Jesus. You will find it very controversial. Don't find spirituality in Jesus first. Find friend in him, and other things will follow in your life. Do you know what the mistakes which we do? We try to find great miracles in our life in Jesus. We try to see, oh, if God will show me this kind of thing, then I'll believe God exists. Or maybe if God will do this thing, then but we need to find friend in him. When I went to cry, I was not a believer since my childhood. I did not have that privilege. God has chose me when I was 20 years old. And then when I was sitting in the church, I did not see the great miracle. I did not see the great light that Paul saw and hear, Lord, that Paul, or Saul, from now onwards, you will going to do the will of mine. I didn't hear those things. अब मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर किस प्रकार कार्य करेगा. मुझे नहीं पता था परमेश्वर मुझे किस तरीके से छुएगा. शायद आप में से भी कई लोग जब परमेश्वर में आए या परमेश्वर पे विश्वास किया, तो आपने कोई वो चीजें नहीं देखी, महान चीजें. यू आर वट एवर कॉन्वर्सेशन वी डू, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो बातचीत हम जो हम फील करते हैं, उसको हम सोचते हैं और उसको हम बयान करते हैं. कोई भी बातचीत ऐसे ही नहीं आती. अगर और जब मैं अपनी गवाही को बयान करती हूं, तो शायद वो
वैसा नहीं हुआ कि मैंने पौलुस की तरह बहुत चमकदार रोशनी देखी और और सोचा कि हाँ यही परमेश्वर है, मान लिया यही यीशु है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कई बार हम ये गलती करते हैं यीशु को जानने के लिए। हम सोचते हैं कि कुछ महान बड़ा चमत्कार रोशनी दिखेगी तब हम कहेंगे हाँ यीशु परमेश्वर है, तब हम कहेंगे हम आत्मिक तौर से स्पिरिचुअलिटी में आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता। यीशु समारिटन स्त्री के समान आपके पास आएगा, मुझे पानी दो। एक साधारण इंसान की तरह आपके पास आएगा, यीशु कहेगा मुझे पानी दो, और वो बातचीत करेगा। किस प्रकार? अपने वचनों के द्वारा। कैसे? अपने वचनों के द्वारा वो हमसे बात करेगा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं शायद आशु की तरफ सबसे पीछे जाके बैठी थी, आगे कोई मुझे देख ना ले, बुला ना ले, सोच ना ले, सबसे पीछे जाके बैठे हुए थे और वर्शिप चल रही थी और वर्शिप के गानों ने मेरे हृदय को छुआ। आपको पता है, बट आराधना के गानों ने हृदय को छुआ। और तब मैंने सोचा कि मुझे इस यीशु को जानना है, इस यीशु को जानना है जिसने मेरे हृदय को छुआ। तो अब आप सोचेंगे क्योंकि मैं हृदय को छुआ बोल रही हूं तो शायद यीशु ने आके मेरे हृदय को छू लिया होगा ऐसे। अरे नहीं बाबा, जब आप किसी को प्यार करते हो तो कहते हैं तुम मेरे आंखों का तारा हो। तो सच में तारा है वो? तारा लगा है यहाँ पर? नो, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। You know within that God has touched you. You know, sometime हम यही मिस्टेक करते हैं। I don't know why am I flowing in that way. God has given me different word. But आज मैं आपको ये वचन बताना चाहती हूँ कि प्रभु का छूना सबसे बड़ा चमत्कार है आपके जीवन में। आपका बत्तीसवां लेना सबसे बड़ा चमत्कार है आपके जीवन का। आपके जीवन में यीशु पे विश्वास करना आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो हर एक चीज, हर आत्मिकता, हर चमत्कार, हर रोशनी, हर तरीके का आशीष उसके साथ बहता चला आता है। उसके लिए आपको प्रभु के वचनों को पढ़ना है। You know, today God has given me word, fear not, stand firm. And I said, Lord, why? My people are very courageous. But God has said, no, 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 no. You should say, fear not, stand firm. In order not to fear, we need to understand what is fear. कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैं किताबी और सांसारिक ज्ञान पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करती। हाँ, मेरा भरोसा संसारिक ज्ञान में नहीं है, क्योंकि 20 साल मैंने अपना भरोसा संसारिक ज्ञान में लगाया था और मुझे 0 बटा सन्नाटा मिला। इफ यू अंडरस्टैंड यूल अंडरस्टैंड। ओके, सो साइकोलॉजी क्या कहता है? साइकोलॉजी कहता है डर अच्छा है। अगर आप, क्योंकि डर हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा देता है, जैसे आग का डर, ऊपर से नीचे गिरने का डर। दीज आर एक्चुअली थ्योरीज इफ यू विल रीड। क्योंकि आप ऊपर खड़े हैं, नीचे देखेंगे वो बहुत गहरा है, आप नहीं कूदेंगे, राइट? आप देखेंगे आग क्या है और आप आग को, अगर आपको आग का डर है, आप उसे नहीं छुएंगे, आप नहीं जलेंगे। इट्स करेक्ट। बट मेरा ये कहना है परमेश्वर का डर रखना या परमेश्वर का भय रखना ज्ञान की शुरुआत है। फियर ऑफ गॉड इज अ बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। अगर आप परमेश्वर का भय रखना सीख गए तो आप हर एक चीज से बच जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ आप उन्हीं चीजों से नहीं बल्कि आप परमेश्वर के ज्ञान को समझ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आपको हर एक बुरी चीजों से बचाता है। सिर्फ ऊंचाई और आग से नहीं, सिर्फ पानी से नहीं। फियर ऑफ गॉड इज बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय रखना
हमारे ज्ञान की शुरुआत है। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आज, कोई भागेगा नहीं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, फियर नॉट, परमेश्वर ने कहा। अब हम जब बोलते हैं डर मत, तो डर मत क्या परमेश्वर का एक सजेशन है आपके लिए, या डर मत एक एक आज्ञा है? इज इट अ सजेस्टिव वे ऑफ स्पीकिंग और इज अ डायरेक्टिव? ये परमेश्वर का आदेश है या परमेश्वर का सजेशन है कि भाई मैं तुझे सुझाव देता हूं, देती हूँ, आई डोंट नो, मैं भी बेटा हूं गॉड का, आमेन। मैं तुझे सुझाव देती हूँ कि तुम मत डरो। बट परमेश्वर इस प्रकार नहीं कहता, कहता मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तुम मत डर। हालेलुया। क्योंकि अगर हम नहीं, क्योंकि हमें अगर डरना है तो हमें किससे डरना है, किससे भय रखना है? परमेश्वर का। बट वो भय उस प्रकार का भय नहीं है दुनिया का भय हो। यू नो, जब परमेश्वर कहता है भय कर, भय मत कर, डर मत, जब वो डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये डायरेक्शन, ये जो डर है, ये मेरे बच्चे को किस प्रकार बढ़ने से रोक सकता है। एक स्टोरी है चाइना की। चाइना में जो स्त्रियों के पैर हुआ करते, लड़कियों के पैर, वो छोटे छोटे सुंदर माने जाते थे, जितने छोटे हो, लेट्स से एस्तर के पैर देखें या डेबोरा के पैर देखें, उतने छोटे। एक वयस्क स्त्री के पैर उतने छोटे होने चाहिए। तो वो क्या करते थे, उन पैरों को बांधते थे, उस पैर को कपड़े से बांधते थे अच्छे से, और उसके ऊपर उनको छोटी छोटी बेली पहनाते थे। अगर आपको नहीं पता, आप यूट्यूब में डालें और चाइनीज फीट डॉक्यूमेंट्री अगर आप डालेंगे तो आपको मिलेगा कि क्या होता था। और वो क्या करता था, वो कपड़े से इसलिए बांधते थे कि वो बढ़ने से रुके। बट वो रुकता नहीं था, वो बढ़ता था। तो उनके पैर अगर आप खोल के देखें, बहुत अगली होते थे, डिस्ट्रॉटेड होते थे। उंगली यहाँ निकल गई है, पीछे मुड़ गई है, बिकॉज बट पैर छोटे रहते हैं, सो दे हैव टू बाइंड देयर फीट इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर ग्रोथ। डर उस पट्टी के समान है आपके लिए, जो आपको बढ़ने से रोकता है। बट आप बढ़ेंगे, बट डिस्ट्रॉटेड हो जाएंगे अगर आपके हृदय में डर है तो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा डरना नहीं है, डर मत। यू नो, हमारे स्ट्रगल्स, हमारे बैटल्स, हमारी परेशानियां, ये सब हमें डर पैदा करता है ना। मृत्यु का डर, करियर का डर, आयु का डर, एज का डर। आहा, मैं 30 साल का हो गया, अभी मैंने क्या कर पाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसे करना था, मुझे वैसे करना था, जो भी मैंने सोचा था वो नहीं। बट डर, डर। और आजकल हर एक युवा के अंदर वो डर है। और यीशु मसीह का वो वचन कहता है डर मत। वो डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। कुछ डर, मेरे मेरे ऑफिस में एक मेरी फ्रेंड है, उसको चूहे से बहुत डर लगता है, बहुत डर। अगर मैं बोल दूं चूहा, she'll be like really, she'll behave like that, and I'll see her and say इतना डर, like, but think about your fear. God told, अच्छा ठीक है, उसको चूहे से डर लगता है, तुम्हारा क्या फियर है? उसका वो फियर है। एक फनी पार्ट हुआ, कहते मुझे चूहे से डर नहीं लगता, मुझे छिपकली से डर लगता है। एनीवे, राइट, अलग अलग, सबके डर अलग अलग है। बट गॉड इज सेइंग फियर नॉट। कुछ कहेगा मुझे अंधेरे से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे या किसी भी चीज से डर लगता है। बट what God is saying here, God is saying do not fear.
और जब परमेश्वर ये कहता है कि मत डर, तो परमेश्वर इसलिए नहीं कहता कि वो आप पर हक जमाना चाहता है, और कहता है परमेश्वर ये इस प्रकार कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मुझे नहीं डरना क्योंकि वो मेरे साथ है। वो इसलिए नहीं कह रहा तू आगे जा आगे जा आगे जा, पहले तू देख कितना गर्म है। वो ये कह रहा है मत डरो, मुझे पता है तुम्हारी जो परेशानियां हैं, तुम्हारे जो स्ट्रगल्स हैं, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हारे हृदय में डर पैदा कर रहा है। सोच रहा है अरे मेरे जीवन में क्या होगा, दूसरे के जीवन को देख के अपने जीवन में भय आ रहा है। दूसरों की स्टोरी देख के तुम्हें अपनी स्टोरी में डर आ रहा है, राइट? ओहो प्रभु, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए, अरे वो तो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, वो कहां पहुंच गए, राइट? और मैं अभी कहां, मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं? गॉड इज सेइंग योर बैटल डजंट बिलोंग टू यू। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। धन्य है वो जन जो यहोवा पे विश्वास रखना जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो देखने पाएंगे प्रभु की बातों को। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में डर, मत डर कितनी बार लिखा है? 365, अलग अलग तरीके से। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर से इट्स 365 टाइम्स, यानी कि हर एक दिन। डर मत 70 से 100 बार लिखा है, स्पेसिफिक टाइम पर, जब गॉड ने कमांड की तरह लिखा है। डू नॉट बी अफ्रेड, मत डरो, 100 से भी ज्यादा टाइम लिखा है, 100 टाइम लिखा है। डू नॉट फियर 80 टाइम्स लिखा है। एंड अदर टाइम ऑल, इफ यू विल ऑल टोटल एवरीथिंग, इट्स 365 डेज अप्रॉक्स। 360 हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि डर ऐसा दुश्मन है आपका जो हर एक दिन, हर एक सुबह आपको डराने आएगा। कभी आप सच सच बताना कि कभी आपको ऐसा लगता है जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक अचानक से डर पैदा होता है, आपके हृदय में एक एक डर आएगा, वो आपको उदास कर देगा, वो आपको कहेगा आज मेरे जीवन में हो क्या रहा है, मेरे जीवन में चल क्या रहा है। आज आज मैंने सोचा था इस साल तक तो मुझे यहां पहुंच जाना चाहिए था, राइट? और वो डर हर एक दिन आता है। बट वो डर है क्या? आपको पता है साम 23 verse 4, if it is there, it says, even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod, your staff, they comfort me. It says, अगर मैं अंधकार के मृत्यु की तराई से भी होके निकलूंगा तो मैं ना डरूंगा, अंधकार की तराई से भी निकलूंगा तब भी ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। कौन कह रहा है ये? दाऊद कहता है कि मैं अगर अंधकार से भी निकलूंगा तो मैं नहीं डरूंगा। गॉड इज विद अस, गॉड इज विद अस। हमें डरना इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो मेरे साथ साथ चलता है। क्यों? क्योंकि आई नॉट फियर इविल बिकॉज व्हाट, फॉर यू आर विद मी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। बट ये डर है क्या? डर का मतलब होता है किसी चीज से भय रखना, या किसी इंसान से भय रखना, या किसी किसी से भय रखने को, लाइक इट्स बीइंग अफ्रेड ऑफ somebody, समथिंग, और some situations। ये सोचना मेरे जीवन में कुछ बुरा होगा, समथिंग बैड विल हैपन इन माई लाइफ, ओ शायद मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, या मैं मर जाऊंगा क्या, दीज आर ऑल फियर।
ऐसे रहूंगा तो ये क्या होगा, कल क्या होगा किसने जाना, कल क्या होगा nobody knows, but still you fear what will happen tomorrow, but we will not live कल क्या होगा किसने जाना, तो आज जो करना है वो कर लो, that is wrong. जब मैं यीशु पे विश्वास नहीं करती थी तो मैं, मेरा जीवन का मोटो पता है, सबका जीवन का एक मोटो होता है, मेरे जीवन का एक मोटो था, कल का पता नहीं क्या होगा, तो आज जो भी कर लो, कोई कोई दूसरे जीवन नहीं है, ये सही था, मैंने समझा, बट को यही जीवन है, अच्छा बुरा सब यहीं कर लो, पाप भी कर लो, कुछ नहीं होता, एक ही बार जीवन मिला है यार, बार बार थोड़ी ना मिलना है, सब कर लो, बट दिस इज नॉट व्हाट बाइबल सेज, दिस इज नॉट व्हाट गॉड इज सेइंग कि ऐसा फियर नहीं, ऐसे भी निडर ना रहो, लेकिन पता है उस निडरता में परमेश्वर मेरे साथ नहीं था, क्योंकि जब हम उस निडरता में थे, जब मैं उस निडरता में थी, तो मेरे पास परमेश्वर नहीं था, तो क्या था, हर तरीके के पाप आपके साथ कनेक्ट करने के लिए आना शुरू करेंगे, इट्स जस्ट लाइक ओपन चार्जर बूथ, देखा है कभी एयरपोर्ट पे, सब अपना चार्जर लेके लगाने आ जाते हैं, समटाइम आवर लाइफ इज लाइक दिस, वी अलाउड आवर लाइफ टू बी लाइक दिस, हम अप, हम अपने जीवन को ऐसा खुला चार्जर बूथ बना देते हैं, कोई भी आके चार्ज करके चला जाए, नहीं 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 नहीं, मैं निडर रहूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है डर का ऑपोजिट क्या है, विश्वास, आमेन, फियर का ऑपोजिट है फेथ, आमेन, अगर आपको फियर से लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे, विश्वास के साथ, हमें यह भी समझना है कि हम फियर को, डर को ओवरकम कैसे करेंगे, उसमें विजय कैसे पाएंगे, डर तो है, और डर का समाधान क्या होगा, कभी सोचा है, डर है, आप सोचिएगा मुझे किसका डर है और मुझे उसका समाधान कैसे मिलेगा, हालेलुया। आपको पता है द फियर लिमिट्स यू, फियर कीप्स यू struggling, or I'll put in that way, fear keeps you preoccupied to be anxious and and what, and to be full of worries. कभी आपने मेल किया, ईमेल किया, मुझे नहीं पता, आप ऑफिस जाते हैं, बट ईमेल तो इतना क्या होगा, सॉरी गाइस आई एम प्री ऑक्यूपाइड आई कांट कम, राइट, मैं पहले से ही व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता, आपने ये वर्ड सुना है प्री ऑक्यूपाइड, आपको पता है जो डर है वो इसी समान कार्य करता है, डर क्या कहता है, डर कहता है कि सुनो तुम व्यस्त हो, किसमें, एंजाइटी में, एंजाइटी को क्या बोलते हैं, चिंता में, किसमें व्यस्त रहो, चिंता में, वरीज में, मतलब बेचैनी आपके पास रहे, एंजाइटी, बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, आई एम एंशियस यार मेरे जीवन में क्या हो रहा है, आजकल बहुत एंजाइटी इज अ वेरी प्रो टर्म्स, लाइक जेंजी टर्म्स, they feel very good when they say I'm anxious, but that is not good, Bible say don't be anxious about anything, बेचैनी मत रख, कुछ किसी भी चीज के लिए बेचैन मत हो, किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो, क्योंकि डर क्या करता है, डर आपको व्यस्त रखता है, बिजी रखता है, किसमें, वरी रखने, वरी करते रहो, आपको पता है जब आप वरीज में रहोगे, आप चिंता करोगे या आप बेचैन रहोगे, आप क्लैरिटी में नहीं देख पाओगे, आपका आंखें फॉगी रहेगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इट्स जस्ट लाइक आपकी आंखें धुंधली, आपने कभी रोया है, रो के आप देखने की कोशिश करते हो, धुंधला दिखता है ना, इट विल बी लाइक दैट, फिर आपकी आंखों में एक झल्ली लगा देता है, एंड वो जैसे मोतियाबिंद होता है ना, एक आंख के ऊपर एक कवर होता है और वो आपको विजन ब्लर करता जाता है, राइट,
डर उसी समान है, वो आपको व्यस्त रखेगा कि आप अपने वरीज में और आप अपने चिंता में बिजी रहें. द वन हु इज बिजी in worrying, in being anxious, they can't have faith. बहुत मुश्किल हो जाता है. विश्वासी तो है वो, क्योंकि यीशु पे विश्वास किए तो विश्वासी है. बट विश्वास पे चलना और विश्वासी होना दो दो अलग चीजें. विश्वासी भी दो तरीके के हो सकते हैं. ये मैं नहीं करी आपका वचन, आप बाइबल अगर ध्यान से पढ़े तो आपको पता रहेगा कि विश्वासी का मतलब क्या है. राइट, विश्वासी भी दो समान हो सकते हैं. एक विश्वासी जो विश्वास में तो है बट चिंता में है. एक विश्वासी विश्वास में चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. जो विश्वास से ही हम जो हम बेकार के व्यस्त हैं उससे फ्री हो सकते हैं, और विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन में फलों को देख सकते हैं. आपको पता है, डर आपके अंदर संदेह पैदा करता है. क्या पैदा करता है? संदेह को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में सुने तो क्या बोलते हैं? डाउट. हाँ, हम बोलते हैं ना, डाउट मत करो, गॉड के वर्ड पे डाउट मत करो. वी से थॉमस द डाउटर. हम कहते हैं जो थॉमा था वो संदेह करने वाला चेला था. क्यों? क्योंकि सब चेले ने देखा और विश्वास किया, और किसी ने सुना और विश्वास कर लिया. बट थोमा कहता है नहीं 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 नहीं, जब तक गॉड आके मुझे अपने छेद ना दिखा दे जहां पर उनको ऐसे सूली पे चढ़ाया था, जब तक मैं अपनी उंगली डाल के ना देख लूं जहां पे भाला घोपा था, मुझे वहां पे उंगली डाल के देखना है, और तब मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह फिर से जी उठा. नहीं तो नहीं करूंगा. तो यीशु मसीह आते हैं, अपने अपने उंगली को कहते हैं कि डालो, पहचानो. तो कहता परमेश्वर, मैंने समझ लिया आप ही जिंदा खुदा हो. तो यीशु कहता है धन्य है जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, क्योंकि वो स्वर्ग में तुमसे पहले कहलाए जाएंगे. आपको पता है, अब थोमा से भी ऊपर हो, क्योंकि आपने यीशु को देखा नहीं बट फिर भी विश्वास किया. क्योंकि आपने देखा नहीं फिर भी विश्वास किया. वो आपको हर एक डर से छुड़ाता है. विश्वास, विश्वास जो दाऊद ने किया. आपको पता है, जब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी, ये साम 23 से, राइट. यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कभी घटी ना होगी. अगर आप इस साम के बैकग्राउंड को देखें तो ये साम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं लिखा गया था. ये उसकी चिंताओं में लिखा गया था, उसके एंजाइटी में लिखा गया था. और उसने क्या बोला कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है. यू नो, हमें विश्वासी होने के नाते हमें अपने विश्वास से अपने डर पे विजय पाना है. क्योंकि अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, आप बोलेंगे मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं. अरे बाबा, आपकी पट्टी बंधी हुई है, आप अपने पैरों में पट्टी को बांध रखा है. वो बढ़ना तो चाहता है बट आपका डर ने उसको रोक रखा. क्या होगा, क्या होगा अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो. यू नो, आई हैव डन एमबीए. सो हमें एनीवे मैंने बिजनेस नहीं किया बट आई हैव डन एमबीए, स्टडीड अबाउट एमबीए. बिजनेस कैसे करते हैं, तो बिजनेस में एक टर्म होता है हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट. जितना आप जोखिम उठाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा. ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदा, कम जोखिम कम फायदा, बिल्कुल जोखिम नहीं बिल्कुल फायदा नहीं. ये बिजनेस का टर्म है. और सार जितनों ने इसको सीखा है वो मिलेनियर बिलेनियर्स हैं. और जिसने ये सोचा नहीं नहीं मैं पैसे डालूं, पैसे नहीं डालूं, नो फायदा. I'm telling you, this is what business says. But somehow Bible also says that in order to have greater victories in your life,
You have to learn to take risk by trusting the Lord. Hallelujah. Can we see Matthew 10:26 and 28? So have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul, body in hell. Fear not. मत डर. आप आप किस प्रकार से उस डर से, उस भय से निकल सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं? पता है, आप उस डर से छुटकारा पा सकते हैं. आपको पता है, मैं आई एम टेलिंग माई स्टोरीज. इज इट ओके? आई वॉज अफ्रेड सिंस माई चाइल्डहुड. मैं डरती थी अकेले रात में स्पेशली वॉशरूम जाना. मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ऐसा किया है, बट मैं सो के उठती थी, कहती मम्मी मम्मी चलो. मेरी मम्मी को भी पता है कि कहाँ जाना है. ओके चलो. And when I was in a hostel, I preferred not to drink too much water, so I have to go at night. I don't prefer that. So जब मैं विश्वास में आई, तो तभी ये डर था, कहीं ना कहीं ये डर था. सो आपको पता है, जब आप लाइट बंद करते हो तो आप कैसे भागते हो? आपको पता होगा, राइट? आप एक कमरे से दूसरे कमरे में, पता नहीं शाइन को बोला गया है कि नहीं, प्रेयर रूम का दरवाजे का लाइट बंद करके आना. जब तक दिन है, प्रेयर रूम बहुत अच्छा है. I don't know. You know that uh, when I go to Ishant house, that reminds me of olden days. क्योंकि जब मेरे पापा का कभी कभी ट्रांसफर होता था ऐसी जगह पे, हमें अंग्रेजों के जमाने के घर मिला करते थे, जिसकी छत 2 छत से बराबर ऊंची होती. तो फैन ऐसे लंबा होता था, ऐसे करता है लिटरली. If you will open the door, you literally feel the sound of it's a horror movie I'm living it. And top of that, my mom is a very good storyteller. I don't know whether she said, I've seen somebody on that wall. And I said, how? So I was grown in that atmosphere. Funny part apart. So when I was in Christ, जब मैं परमेश्वर में, मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता सेवियर माना, तब भी मेरे लिए ये डर की बात हुआ करती थी कि अकेले रात में कैसे मैं अकेले वॉशरूम जा सकती. बहुत दूर है, थोड़ा दूर है. इस प्रकार हुआ करता था. परंतु एक दिन परमेश्वर ने कहा, तुम किससे डरते हो? किससे डरते हो? ज्यादा से ज्यादा कोई तुम्हारा गला पकड़ लेगा. गॉड लिटरली टुक मी इन माई वर्स्ट इमेजिनेशन. मेरी जो समझ से भी जितनी इमेजिनेशन थी, गॉड मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा था. क्या क्या डर लगता है? कोई पीछे जाके गला पकड़ लेगा, सर पकड़ लेगा, या खा जाएगा? क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मार देगा, बट स्टिल यू विल बी विद मी. लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अनंतता का जीवन है. तुम्हें किसका डर है? हाँ, कि कोई बुरी आत्मा मुझे आके पकड़ लेगी या मेरा गला पकड़ ले? किसका डर है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये वचन कहता है, ये नहीं कह रहा कि प्रभु हमें मारने आ रहा है. ये कह रहा है कि यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हमें मरने के बाद भी हमारा जीवन अनंतता में है. हम खो नहीं जाएंगे मरने के बाद. हम नरक में नहीं चले जाएंगे मरने के बाद. उसके बाद भी हमारा जीवन है. शैतान तुम्हें यहां मार सकता है, बाद में मार देगा. तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता. वो तुम्हारे प्राण को नहीं छू सकता. और उस चीज ने मुझे इतना सामर्थ दिया कि मैं ऐसे गई, और आई रियली एंजॉय दैट टाइम. नाउ आई कैन हेल्प एनीबडी एल्स. हालेलुया. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो भी सेविकाई प्रभु ने मुझे उस समय पे दी थी, वो सारी सेविकाई बुरी आत्माओं को निकालने वाली थी. और पता है मैं प्रार्थना क्या करती थी? आई यूज्ड टू गो एंड प्रे फॉर समबडी. वो अपनी आंखें घुमा लेते थे, हो जाता था, आई डोंट नो, बट उनकी आंखें घूम जाती थी, वो टेढ़े हो जाते थे. एंड आई लाइक, लॉर्ड व्हाई लॉर्ड, यू डोंट नो.
within me. I'll tell you one story, a really serious story. वो थोड़ी funny भी लग सकती है. There was a girl. We were हम सुबह की प्रार्थना की सभा में थे. हम प्रार्थना करने गए और मैं प्रार्थना कर रही थी एक कॉर्नर में पकड़ के. वहां सुबह ऐसा होता था, आप सुबह सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप किसी भी कॉर्नर में जाके बैठे और प्रार्थना करें. तो मैंने एक कॉर्नर पकड़ा था और मैं परमेश्वर में खोई हुई थी और प्रार्थना कर रही थी. अचानक से पीछे से कोई आता कहता है, सपना उठो, शिवड़ी उठो. मैंने कहा क्या हुआ? उसको कुछ हो रहा है, उसको कुछ हो रहा है, उसको बुरी आत्मा आ रही है. एंड हम कुछ लोग थे वहां पर साथ में, उस सिस्टर के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे. और वो जो बुरी आत्मा थी वो बहुत स्ट्रांग थी. परमेश्वर के सामने नहीं, बट मेरे सामने, मेरे डर के सामने थोड़ा सा. और उसने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर, तुम जो इतना डरती हो. I was like, I'm more fearful. How come she knows? She said, you woman of doubt, you pray for me. I still remember that word from that lady. You woman of doubt praying for me. उस टाइम मैं भागी नहीं. उस समय मैं खड़े होके, oh Lord Jesus, I was just shouting and praying. I don't know, it was amazed to say that, but उस समय पवित्र आत्मा ने कुछ शब्द दिए और कहा, मैं मेरे स्वभाव से नहीं, बट यीशु मसीह के लहू से सिद्ध की गई हूं, और मैं तुझे आज्ञा देती हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा. आपको अभी हीरोइक लग रहा होगा ना? अभी आगे की स्टोरी बाकी है. जब मैं अपने घर वापस गई, वो बात मेरे कान में गूंज रही थी. आप समझ रहे हैं, कई बार आप विश्वास के द्वारा उस समय तो ओवरकम कर लेते हैं, बट क्या आपने वो बात को सुन लिया और अपने जहन में डाल लिया? वो बात कई बार घूमती रही, डर की वजह से नहीं. मैंने कहा ऐसे कैसे कह दिया, वुमेन ऑफ डाउट. आई शुड हैव फेथ, मोर फेथ. आपको पता है, बुरी आत्माएं तक जानती है कि विश्वास से आप सब कुछ कर सकते हैं. आपके विश्वास से, आपकी कमियों से कुछ नहीं होने वाला. अगर आपने विश्वास रखा है उस यीशु मसीह पे, उसके लहू पे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आप, आर यू लर्निंग समथिंग? आई एम बिकमिंग वल्नरेबल टुडे इन फ्रंट ऑफ यू. आज मैं बताना चाहती हूँ प्रभु किस प्रकार कार्य करता है हमारी कमियों में भी. हालेलुया. आपको डरना नहीं है कि कौन आपकी बॉडी को किल सकता है. यू आर सेफ इन गॉड. You are safe in Christ. Your soul is already translated. आपका प्राण प्रभु ने नरक से निकाल के स्वर्ग में डाल दिया है. वचन कहता है कि इफिसियों की किताब में कि हम अभी प्रभु के साथ सिंहासन पे बैठे हुए हैं. अभी अगर हम अभी यहां बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन में कैसे बैठे हुए हैं? क्योंकि वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. और इसीलिए वचन कहता है कि जो हमें किससे डरना है? प्रभु से, जो आत्मा और प्राण सबको नष्ट कर सकता है. आमीन. इसलिए हमें डरना नहीं है. हमें डर पे क्या कर पाना है? जीत पानी है. यू शुड नॉट फियर ऑफ एनीथिंग. अगर आप डरते हैं ना, यंगस्टर्स, वो लड़की छोड़ के ना चली जाए. मुझे वो बहुत पसंद है कि अगर तुम्हें उससे उसको खोना नहीं है तो प्रभु में बढ़ना है, प्रभु पे ज्यादा प्रार्थना करनी, प्रभु से. तो अपने रिश्ते को प्रभु के सामने रखो, अपने रिश्ते को प्रभु के पास लेके आओ. छुप छुप के नहीं करना कुछ भी. अपने रिश्ते को, अगर आप सच्ची हृदय से हो, अगर आपके मन में खोट है तो आप छुप छुप के करोगे क्योंकि आप श्योर नहीं हो ये लड़की लड़का है कि नहीं है. अगर पास्टर को बता देंगे तो कल ही शादी करा देंगे, अभी तो मुझे और चेंज करना है, चेक करना है. राइट, यू आर नॉट श्योर. देन क्या होगा? आप रिलेशन को गॉड के सामने लाओगे नहीं, आप डर के रहोगे. बट इफ यू नो कि आपका हार्ट क्लियर है. सो आई टॉट हिम
कि अपने अपने रिश्ते को, अगर इफ यू रियली रियली वांट टू मैरी दिस गर्ल, यू शुड नॉट हाइड फ्रॉम गॉड। व्हेन यू ओवरकम एवरी फियर। हमारा दिक्कत यह है, हम डरते हैं लूज करने से, हमें डर लगता है हम खो ना दे, हम खो ना दे। क्या हुआ, क्या होगा अगर मुझे वो ना मिले। अरे हम गाना गाते हैं ना, प्यार तो अंधा है जी हम देख नहीं सकते, प्यार तो लंगड़ा है जी चल नहीं सकता। दुनिया का प्यार की बात कर रहे हैं वो, बट परमेश्वर का प्यार पे अगर हमने विश्वास करना सीखा, हमने उससे बात करना सीखा, तो हम जान पाएंगे कि हमें पता है कि कब हमें अपनी ग्रिप को ढीला करना है, कब हमें जाने देना है, क्योंकि हम उस पे विश्वास करना जानते हैं। किस पे विश्वास करना जानते हैं? यीशु पे। अगर आप वो इंसान बन जाएं मूसा के समान, कहते प्रभु मुझे हनी और मिल्क नहीं चाहिए, मुझे वो लैंड नहीं चाहिए जहां आपकी उपस्थिति ना हो। कल को मैं उस इंसान को पा भी लूं, फिर क्या, फिर क्या? फिर उसका भी सर फोड़ू, अपना भी फोड़ू? नहीं ना। प्रभु की उपस्थिति होना जरूरी है, प्रभु की उपस्थिति होना जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन को सुंदर बनाती है, वो गार्डन बनाती है, जो गार्डन आपको स्ट्रांग करता है। डर नहीं, जो डरते हैं वो जकड़ते हैं, वो ऐसे से करते हैं, मेरा है मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है, डोंट टच। बट जो डरते नहीं है वो इनसिक्योर नहीं है, कहते ले लो भाई, तुम ये ले लो, मुझे 4 मिलेंगे। अब्राहम के बारे में पता है ना, जब लॉट सामने आया तो अब्राहम कहते लॉट ले लो, जो तुम्हें लेना वो ले लो। और जब लॉट ने ले लिया, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं आता हूं बच्चे, अब तू अब्राहम देख तुझे क्या चाहिए। दैट इज फियरलेसनेस, कि आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो। आप कब नहीं डरोगे? जब आपको पता आप अकेले नहीं हो। यू विल नॉट फियर व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट अलोन। आप नहीं डरोगे जब आपको पता होगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब आप डरेंगे नहीं, आपको पता होगा। लेकिन जब हम इस फियर को ओवरकम करते हैं, तो गॉड क्या चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं कि हम स्टैंड फर्म रहें। फियर नॉट, स्टैंड फर्म। डर मत, पर स्थिर खड़ा रहे। अब प्रभु कहता है कि डर डर हमें बढ़ने से रोकता है, पर प्रभु कह रहे हैं स्थिर खड़ा रहे। तो इसका क्या मतलब है? किस चीज में हमें स्थिरता रखनी है, किस चीज में हमें स्टैंड फर्म रहना है? आपको गॉड के वचनों में, उसके वायदों में, उसके विश्वास में अडिग रहना है। क्या रहना है? अडिग रहना है उसके विश्वास में। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द मैटर ऑफ गॉड्स वर्ड वी शुड बी हैविंग फेथ। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11, इट सेज, कैन वी रीड इट टुगेदर? Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So आपका दुश्मन कौन है? आपकी पड़ोसी आपके दुश्मन नहीं है। आपके कॉलेज की वो एक फ्रेंड जो दूर रहती, वो आपकी दुश्मन नहीं है। आपके ऑफिस का एक कोई कलीग जो आपको पसंद नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन है कौन? वचन कहता है आपका दुश्मन क्या है? हर एक प्रधानताएं जो आपके फ्यूचर को चुराने की कोशिश करता है, वो आपका दुश्मन है। क्या आपका पड़ोसी आपका फ्यूचर चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता। बट आपका डर आपका फ्यूचर चुरा सकता है। आपका फ्रेंड आपका फ्यूचर नहीं चुरा सकता, पर आपका डर आपका फ्यूचर चुरा सकता है।
आपका कलीग आपका फ्यूचर नहीं चुरा सकता, बट आपका डर आपका फ्यूचर चुरा सकता, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे हर तरीके की हर तरीके का अधिकार दिया है, सब पर अधिकार दिया है। इसका मतलब हम अधिकार में जीते हैं, बट वो डर हमें अधिकार में जीने से रोकता है। कोई भी इंसान आपका फ्यूचर नहीं चुरा सकता, क्योंकि प्रभु ने आपको सबसे ऊपर रखा है। बट आपका खुद का डर आपका फ्यूचर चुरा सकता है। आपके फ्यूचर को कोई नहीं चुरा सकता। कहिए, आज मेरे फ्यूचर को कोई नहीं चुरा सकता। मेरा डर मेरे फ्यूचर को नहीं चुरा सकता। मैं डर डर के नहीं जीऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। और आपको पता है कि हम क्यों नहीं अडिग रह पाते? पता है ना? आई हैव रिटन डाउन, we face grief when we face losses, when we see sicknesses and disappointment that lead us into doubt. Sometimes you know this word, God is with you, but आप कहेंगे हाँ ये तो पता है, कुछ और बताओ जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे बताए यार 50,000 चाहिए मुझे। वो कहेगा प्रभु तुम्हारे साथ है। हाँ वो तो मुझे पता है, बट 50,000 मिलेंगे कैसे, वो बताओ। राइट? But you don't understand. The whole treasure is in that he is with you. अगर आप वो चाबी समझ लें कि वो आपके साथ है, तो आपको किसी की कमी नहीं है। मैं 3 तरीके आपको बताऊंगी जिससे हम अडिग रह सकते हैं। फर्स्ट, क्यों जरूरी है अडिग रहना? क्योंकि वचन इफ अगर हम आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 9 का लास्ट का बी पार्ट पढ़ेंगे, वो क्या कहता है? इफ यू आर नॉट फर्म इन फेथ, यू विल नॉट बी फर्म एट ऑल। अगर आप अपने विश्वास में अडिग नहीं है, तो आप अडिग है ही नहीं। आपको पता है, जो भी चीजें बढ़ती है उसको स्थिरता में रहना आना चाहिए। वचन कहता है कि एक विश्वासी जन एक उस पेड़ के समान है। वचन कहता है विश्वासी जन उस पेड़ के समान है जो जो नदी के किनारे पर बोया गया है और खड़ा हुआ है, और दिन रात हर मौसम वो फल देता है। आपको पता है, अडिगता एक ऐसा चरित्र है। अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने जहां मुझे रोपा है, अगर मैं वहां खड़ा रहना सीखूं, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के विश्वास में, उसके वायदों में, तो आप उस प्रकार का पेड़ है जो हर मौसम फल देता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ विंटर्स में अरे या मेरा मौसम आ गया प्रचार करने का, क्योंकि क्योंकि मॉनसून में तो बारिश होती है, गर्मी में तो गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो मेरा मौसम जो है ना, स्प्रिंग मौसम है, मजा आता है उसमें सेविकाई करने में। आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि हर एक मौसम में आप फलों को पैदा करने वाले हैं। राइट? हर एक मौसम में आप फलों को पैदा करते हैं। बाइबल क्या कहता है? आइज़ाया में कहता है इफ यू आर नॉट फर्म इन फेथ, अगर आप विश्वास में अडिग नहीं है, तो यू आर नॉट फर्म एट ऑल, तो आप अडिग है ही नहीं। विश्वास आपको वो कुंजी देता है जो आपको दिखाता है कि आप देख सके कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ बैठा है, वो आपसे बातें करता है, वो आपसे, वो सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विश्वास के द्वारा। यू नो हाउ वी कैन स्टैंड फर्म? नो अपॉन व्हाट वी आर स्टैंडिंग। पहला, हमें पता होना चाहिए हम किस पर खड़े हैं। आपका फाउंडेशन क्या है? आप किस पे खड़े हैं? आपको पता है वचन कहता है आइज़ाया 8:40 का 8, ग्रास विदर, द फ्लावर फेड्स, घास मुरझा जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, बट द वर्ड ऑफ गॉड विल स्टैंड फॉर एवर। आमेन।
पत्ते झड़ जाएंगे, फ्लावर्स मुरझा जाएंगे, आप आज कुछ भी हो जाए, बट परमेश्वर का वचन विल स्टैंड फॉर एवर। उसका वचन हमेशा खड़ा रहेगा। आपको अपना जो फाउंडेशन, आप किस पर खड़े हैं, आपको परमेश्वर के वचनों पे खड़ा होना चाहिए। आमेन। It is very important. In order to stand firm, you should have faith. And faith comes by hearing the word of God. आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते। आप विश्वास में कब नहीं बढ़ सकते? आप विश्वास में तब नहीं बढ़ सकते जब आप वचनों को ही नहीं जानते। आपको विश्वास अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने के लिए, उस फेथ को एक्सपीरियंस करने के लिए वचनों को पढ़ना जरूरी है। वचन मुझसे क्या बात कर रहा है आज? ऐसा वचन नहीं जैसे पास्टर ने पिछली बार फनी वे में, पिछली बार पास्टर ने बताया था, आई डोंट नो, आई हर्ड प्रॉफिट और पास्टर, आई डोंट नो, बट कुछ लोग ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, ओ लॉर्ड आज का वचन, जुड़ा हैंग हिमसेल्फ। हाँ, अपोस्टल ने बोला, राइट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, प्रभु आज आज का वचन, आंख बंद करके जो पहला और जो पहला लाइन होगा वो मेरे लिए है, और वचन खोलते ही पहला आता है, जुड़ा हैंग हिमसेल्फ। जुड़ा ने अपने आप को फांसी लगा दी। हाँ, कहते नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। दूसरा खोला, यू डू एज वर्ड ऑफ गॉड सेज। और दूसरा वचन आता है, ऐसा ही कर जैसा वचन कहता है। हाँ? पहले में आया, जुड़ा ने अपने को फांसी लगा दी। दूसरे में आया, तो वैसा ही ऐसे वचन नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? ध्यान से, कंसंट्रेशन से, अगेन एंड अगेन हमें वचनों को पढ़ना है। We have to learn the word of God. We have to read the word of God. We have to memorize the word of God. I really like that Bible B competition. मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, लेट्स से अगर बोला fear not, stand firm, then they have to close their eyes, और उनको देखना पड़ेगा कि कौन से बाइबल के वचन से है, कहाँ से बोला गया है, कितना पोर्शन है, और फिर वो उसको रिसाइड करते हैं। यू शुड सी दैट ऋषभ, यू शुड सी दैट, इट्स कॉल्ड बाइबल बी, राइट। और वो मेमोराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको फेथ में, विश्वास में बढ़ना है, तो आपको वचन पता होने चाहिए। प्रभु आपसे बात करेगा कब? जब आप वचनों को पढ़ेंगे। आपको अपने जीवन में मैरेकल देखना है, तो आप वचनों को देखें, आप मैरेकल को देखने पाएंगे। आई रियली, व्हेनेवर आई सी आरुष, जब मैं आरुष को देखती हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, राइट। क्योंकि जब आरुष को पहली बार देखा था और आज में बहुत अंतर है। आपको पता है, वो वर्शिप में क्लैप कर रहा था, और जब मैंने आरुष को देखा था तो मेरी प्रार्थना पता क्या थी? और आज से वो आपकी प्रार्थना होगी, उसका फ्यूचर कोई चुरा नहीं सकता, उसका भविष्य उससे कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। और ये आज से आपकी भी प्रार्थना है कि हम उसको यहाँ पर आमेन कहते हुए, हमें रिस्पॉन्ड करते हुए देखेंगे। उसका भविष्य उसको कोई चुरा नहीं सकता। और ये विश्वास कहाँ से आया? जब हमने वचन पढ़ा, जब हमें पता चला कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं, और यीशु मसीह वो चंगाई आपके जीवन में आज भी करता है। Psalm 40 verse 1 and 2, if it's not there, I'll read it. It says, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the stinky pit, out of the mud and mine. He set my feet upon a rock, and he gave me a firm place to stand. हमें स्थिरता में बढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रभु ने हमें किस पे, फाउंडेशन पे खड़ा किया। वो फाउंडेशन है परमेश्वर का वचन, वो फाउंडेशन है, उसने हमें अपने ऊपर खड़ा होना सिखाया। हालेलुया।
that we can stand. He put my feet upon a rock and gave me firm place to stand. Your foundation should be Jesus. आप थक जाओगे मिनिस्ट्री करते करते, आप थक जाओगे कलेशिया आते आते, आप थक जाओगे आराधना करते करते, आप थक जाओगे प्रचार करते करते, आप थक जाओगे सेविकाई करते करते, अगर आपको अपना फाउंडेशन नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि यीशु के प्रेम में वापस कैसे लौटते हैं, अगर आपको नहीं पता कि उसके वचनों में कैसे हम इंजॉय करते हैं, आप थक जाओगे. We don't want to be tired, right? We want to be active. और जब हम जब थक जाते हैं तो इंसान का एक चरित्र है, दोष लगाओ और चले जाओ. They don't want to take blame. They want to blame others, right? But they don't know कि वो थक गए हैं और उनको अपनी थकावट सिर्फ यीशु मसीह ही उसको वो पानी दे सकता है और वो खाना दे सकता है. अगर आपको पता चल जाए कि आप थक चुके हैं आत्मिक तौर से, इसलिए क्योंकि आपको वो चट्टान नहीं पता जिसपे उसने आपको खड़ा किया है. आपकी चट्टान आपका कलेशा नहीं है, आपका चट्टान आपके पासवान नहीं है, आपका चट्टान आपकी आराधना का ये स्टेज नहीं है, आपकी चट्टान यीशु मसीह है. आप उस यीशु मसीह पे खड़े, वो आपकी चट्टान है. हमें ना रेस्ट सीखना चाहिए, हमें रेस्ट लेना आना चाहिए. सेवकों को जो सेविकाई करते हैं उनको आराम करना आना चाहिए. उनको आराम समझ नहीं आता, उनको आराम पनिशमेंट लगता है. अगर पास्टर कह दे, जो कीबोर्ड बजा रहा है, कह दे आज तुम आराम करो, आज तुम बैठो, आज तुम सिर्फ आराधना करो, आज तुम सिर्फ उसको देखो, तो वो उसको ये नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, उसको कहेंगे हाय पास्टर मेरे से क्या गलती हो गई. पूरे टाइम वर्शिप में वो बोलेंगे जीसस लव्स मी, बट हृदय में चल रहा है मैंने ऐसा गलत क्या किया जो पास्टर ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मेरे हाथ से माइक चला गया, या मैंने ऐसा क्या गलत. आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको समय दिया कि आप उससे प्रेम करो ताकि आप थक ना जाओ. हालेलुया. कोई पनिशमेंट नहीं है ये पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है. It's a time where you can go closer to him. It's a time when you can grow in love with him. वो golden honeymoon time है. उसको रेस्ट को पनिशमेंट ना समझे, रेस्ट को कहे थैंक यू जीसस, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन स्पेंड टाइम विद यू, बिकॉज आवर फाउंडेशन इज जीसस. Our foundation is not how I serve in the house of God. My foundation is not how I sing to the Lord. My foundation is not based on any activity happens in the house. Your foundation is Jesus. Your foundation is Jesus. So we should know we can stand firm only when we have foundation in Christ. हम अडिग और स्थिर तभी रह सकते हैं जब हमें पता हो कि यीशु मसीह मेरी चट्टान है. On Christ alone, the rock I stand. अगर आप और किसी चीज कोई भी चीज को अपना स्थान बनाना चाहते हो जिसपे आप खड़े होगे, all other grounds are sinking sand. वो एक दलदल के समान है, आप गिरते चले जाओगे और एक समय आपका दम घुट जाएगा. बट यीशु मसीह वो चट्टान के समान है जो आपको ऊंचा करेगा. हालेलुया. वी विल सेकंड पॉइंट नाउ, हमें क्यों स्थिरता में रहना है, हमें क्यों अपने फाउंडेशन पे खड़ा रहना है. बिकॉज इफ वी स्टैंड फर्म, नो वी विल हैव टू resist devil and his lies. अगर आपको स्थिर रहना है, अडिग रहना है, वो क्यों रहना है, क्योंकि आप तभी क्या कर सकते हैं, शैतान की चालों से, शैतान के झूठ से निकल सकते हैं. In James chapter 4 verse 7,
It says, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. जब आप अडिग नहीं होते या आप वेवर करते हो या आप आपको अपनी फाउंडेशन नहीं पता, तो शैतान क्या करता है, आपको टेम्पटेशन के साथ आपके पास आएगा, लोभ के साथ आपके पास आएगा। बट आप उस लोभ से कैसे लड़ाई कर सकते हैं? जब आप प्रभु के अधीन हो, और तभी आप शैतान से शैतान को दूर भगा सकते हैं। एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप हम शैतान से तभी सामना कर सकते हैं जब हम प्रभु में अधीन हो। बिना प्रभु के अधीन हम शैतान से सामना नहीं कर सकते। पहले हमें प्रभु में अधीन होना है, तब हम डेविल को रेजिस्ट करेंगे और डेविल हम भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एंड देन थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट वेवर बिटवीन फेथ एंड डाउट। और आप दो जगह डोल नहीं सकते। आज विश्वास है, आज संदेह है। आज विश्वास है, यू नो माई डाउटिंग डेज आर गोइंग ऑन, my faith days are going on. Oh, I'm feeling very faithful in this week. Oh, I'm feeling very doubtful in this week. हम ऐसा नहीं कह सकते। आप लो फील कर सकते हैं, बट अपने लो फील में भी क्या कह सकते हैं? Yet I will put my faith in the Lord. हो सकता है आप लो फील करें, बट क्या आप कह सकते कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करूंगा? फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 21 says, Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if the Baal is God, then follow him. Do not waver between two. Either have faith or doubt. Bible says that double-minded people does not receive anything from the Lord. जो दो मन रखते हैं, उनको उन्हें कुछ नहीं मिलता परमेश्वर से। हमें डिसीजन लेना है। We have to decide which side are we, then we can stand firm. हम तभी दृढ़ खड़े हो सकते हैं जब हमें पता है कि हमने क्या डिसाइड किया। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, वेदर गॉड इज माई लॉर्ड और बाल इज माई लॉर्ड। यहोवा मेरा परमेश्वर है या बाल मेरा परमेश्वर है, ये समझना आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन योर डिसीजन यू विल सी द पावर। रोमन्स 4:20 says, नो अनबिलीफ मेड हिम वेवर। कोई भी अविश्वास अब्राहम को हिला नहीं सिखा। राइट, इट सेज concerning the promise of God, but the grew strong in faith as he gave glory to God. Today God is calling you to the first teaching. आपको मैंने बताया था ना, आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम कोई जंप नहीं करेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट जंप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप टू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ इज फेथ। फेथ के द्वारा आप हर एक चीज को ग्रहण कर सकते हैं। जीसस कहते हैं अगर तुझ में विश्वास है तो तुझसे कोई भी चीज तू पा सकता है। यू कैन आस्क एनीथिंग एंड इट विल बी गिवन टू यू। विश्वास वो कुंजी है। बाय फेथ यू विल रिसीव व्हाट यू आस्क फॉर। विश्वास के द्वारा, अपने डाउट के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा आप वो चीजें पा सकते हैं जो आप विश्वास के द्वारा ही खड़े रह सकते हैं। आप विश्वास के द्वारा ही आप पावरफुल हो सकते हैं। आपको पता है आपको और दूसरे विश्वासियों को क्या अलग करता है? उनका विश्वास। किसी में ज्यादा विश्वास है, किसी में कम विश्वास है। कोई कहता है कि हाँ मेरे पास इमोशन है, मैं सैड फील कर रहा हूं, बट पता है मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मुझे पता है वो काम कर रहा है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। वचन कहता है कि मैं डरूं, मैं डरूं ना, वो मेरे साथ है। हालेलुया। It says in John chapter 14 verse 6, if it is there, it says, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है।
आपको पता है, सिर्फ बाइबल बताता है कि आप कहां से आए हो, आप क्या करोगे और कहां जाओगे, राइट? Because Jesus knew where he came from. He knew what he come for what purpose he come, and he knew where he's going. John chapter 17 verse 7, it says, now they know that everything that you have given me is from you. और यीशु कहता है अपने चेलों को इस समय कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं यीशु, और कह रहे हैं कि जो भी तूने मुझे दिया है, मैंने, नाउ दे नो, अब वो जानते हैं, कौन? चेले जानते हैं कि जो भी तूने मुझे दिया है, मैंने, दैट यू हैव गिवन मी इज फ्रॉम यू। अब वो जानते हैं जो भी आपने अधिकारिता दी है, जो भी आपने परमेश्वर के काम काम दिए हैं, वो आप में, आपसे आया है, परमेश्वर से। आप चेले जानते हैं। पता है, आपके जीवन में भी लोग ऐसे ही जानने पाएंगे कि आप परमेश्वर के द्वारा हो। कोई भी आपको नकार नहीं पाएगा। कैसे? आपके विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास की वजह से। आप, क्योंकि आप अडिग खड़े हैं, आप स्थिर खड़े हैं। आपको पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपका फाउंडेशन है। हालेलुया। कौन आपका फाउंडेशन है? यीशु मसीह आपका फाउंडेशन है। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के जीवन में बुरा हुआ और वो बुराई आपके जीवन को रूल कर रही है। ऐसे कैसे? क्योंकि किसी ने अपने जीवन में बुराई देखी, या आपने अपने जीवन में कोई परिस्थिति देखी और आपको लगता है कि वो परिस्थिति फिर से आएगी, तो वो जरूर आ जाएगी, क्योंकि आप उससे डरते थे और उस डर ने वो दरवाजा खोला कि वो आ जाए। बट अगर आपको विश्वास है कि वो परिस्थिति मेरे जीवन में दोबारा नहीं होगी, हो सकता है वो हुई, बट अब दोबारा नहीं होगी, यीशु मेरे साथ, अब आप विश्वास में खड़े हैं, वो वापस आपके जीवन में नहीं होगी। विश्वास वो कुंजी है जो आपको यीशु में जयवंतता में जीना सिखाती है, कोई और नहीं।